information that we have been sourcing from our highly placed sources inside the Lok Janshakti Party, we are getting to know that they will hold, the faction led by Chirag Paswan will hold an Ashirwad Yatra from Bihar. And in fact, he will begin that Ashirwad Yatra to gather the support of the public for the Chirag Paswan-led faction. And he will also begin the Yatra from 5th of July, which happens to be the Ram Vilas Paswan Jayanti, the birthday of Ram Vilas Paswan, who was the founding member of Lok Janshakti Party. And in fact, Chirag Paswan, after concluding the meeting, he came out of the residence to brief the media about his demands. And one of the prominent demands that also takes center stage here is his demand for a Bharat Ratna for his father from the government. And in fact, during the Ashirwad Yatra, which will begin from the 5th of July, he will begin the Yatra from the former constituency of Ram Vilas Paswan, that happens to be Hajipur, and which is the current constituency of Pashupati Paras, who is the only alive brother of the Ram Vilas Paswan, apart from Ram Vilas Paswan and Ramchandra Paswan. We know that after the demise of Ram Vilas Paswan, the entire leadership of Lok Janshakti Party controversially went to Chirag Paswan, and which is why Pashupati Paras has a huge problem with it. And in fact, they are also demanding a disciplinary action against the 5 rebel MPs who have now formed their own executive membership, who have now found their own executive council. And in fact, we know Pashupati Paras, yesterday he gave out a list where he became the leader of the parliamentary party in Lok Sabha. However, his demands have been dismissed, and Chirag Paswan is standing against it. And in fact, more than 80 members are right now part of the parliamentary national executive meeting that just now took place. As many as 15 members were part of the meeting virtually. And in fact, this is the biggest breaking that we are breaking from Chirag Paswan. रुक जाइए थोड़ा। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। आराम। चिराग जी, आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया, क्या हुआ? देखिए, उसका औपचारिक एक प्रेस रिलीज बनाकर आप सबके समक्ष रखी जाएगी। पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुझे खुशी है कि कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। उन सबके नाम, उन सबके परिचय के साथ आपको जानकारी दी जाएगी। आप सबने विजुअल्स भी लिए हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद थे। उसमें कई तरीके के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें जो निष्कासित सदस्य हैं उनका पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर अधिकार जताना और उसके तले अपनी बातों को रखना, उसकी घोर निंदा की गई है। उसका विरोध किया गया है यहाँ पर कि जो निष्कासित लोग हैं वो पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं करें। आने वाले दिनों में हम लोगों ने इस बात की मांग जरूर की है कि हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए, और बिहार प्रदेश जो उनकी कर्म भूमि रही है वहाँ पर उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा बनाकर उनको सम्मानित किया जाए। साथ ही में ये निर्णय भी लिए गए हैं कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तो उसमें देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से उस दिशा में काम करें, ताकि जिस तरीके से दूसरी लहर का बहुत ज़्यादा असर करोड़ों लोगों पर पड़ा था, उस असर को हम लोग कम कर पाएँ। उसमें पार्टी के कार्यकर्ता सचेत रहें, मुस्तैदी से काम करें। साथ ही में बिहार समेत कई अन्य राज्य हैं जहां पर बाढ़ से भी प्रभावित होते हैं। बिहार में तो हम लोग हर साल देखते हैं बाढ़ आती है, और इस साल भी बाढ़ का प्रभाव शुरू हो गया है। तो ये तमाम कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया गया है समिति के तहत कि उस पर कार्य करें। और प्रस्ताव में एक प्रस्ताव ये ज़रूर था कि जितने भी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग हैं उन सब का विश्वास पार्टी के नेता और पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मुझ में और मेरे द्वारा लिए गए फैसलों पर उनका है। मुझे खुशी है कि तमाम इन प्रस्तावों को सर्वसहमति से हाथ उठाकर जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे उन सब के द्वारा पारित किया गया। जी बिल्कुल, मेरे पिताजी का जन्मदिन 5 जुलाई को होता है, और हम लोग जब तक वो जीवित थे तो हर साल देश भर में उनका जन्मदिन मनाया जाता था। आज भी मैंने आग्रह किया है कि हर साल की तरह उनका जन्मदिन मनाया जाए। पर अब क्योंकि मेरे ऊपर से मेरे पिता का और जो चाचा जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, दोनों का साया, दोनों का हाथ अब उठ चुका है,
तो अब मुझे बिहार की जनता के आशीर्वाद की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि 5 जुलाई से हम लोग आशीर्वाद यात्रा हम लोग निकालेंगे। हाजीपुर से मैं इस यात्रा की शुरुआत करूंगा और बिहार के हर एक जिला, हर एक प्रखंड से होते हुए ये यात्रा जाएगी। और बिहार की जनता ने जो पिछले चुनाव में मुझे इतना प्यार, इतना समर्थन दिया, अब और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा।